Hello students, welcome to the class. Today we are going to study the first unit of the plus one physics, physical world and measurement, and its second chapter, units and dimension. First chapter we have studied, I have uploaded that in YouTube, you can see over there. In this chapter we are going to study physical quantities, units or standard, system of the units, definition of the units of the SI system, and some measuring technique of length, mass and time. Right, so we'll study the measuring technique in the next lecture. So in this lecture I am going to teach you about the physical quantity, units and the definition of the units of the SI system. Right, so physics is an exact science. It gives the exact relationship between the nature and the natural phenomena, and we express that natural phenomena in terms of the some measurable quantities. Okay, so mathematical form भी है सभी की. Right, there is a quality, also there is a mathematical form. Right, we express that in numbers. Okay, and that laws are expressed in terms of some measurable quantities. उनको कहते हैं हम physical quantities. Okay, so what are the physical quantities? The quantities those can be measured and in terms of which laws of physics can be explained or expressed. ठीक है, ये वो क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ दोज वी कैन राइट द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड वी कैन एक्सप्लेन दैट. ओके, सो देयर आर न्यूमरस फिजिकल क्वांटिटीज दोज कैन बी मेजर्ड. अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो हम भी बहुत सारी क्वांटिटी को मेजर करते हो. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू सी द टाइम. Okay, if you have to go somewhere you see for the distance, how much distance we have to go. Right, you measure the distance. While going you measure the speed. Sometimes you measure the temperature of your body, sometimes we measure the blood pressure. Right, so all these quantities we measure are called physical quantities. So I have written some example over here, but there are numerous physical quantities. Right, thousands of the quantities are there. So mass, length, time, temperature, pressure, speed, जो आप डेली लाइफ में कुछ मेजर करते हो, डेंसिटी. ओके, सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ द scientists have divided the physical quantities in two categories. One is the fundamental physical quantities and second is derived. Okay, first we will study the fundamental. Fundamental physical quantity are the elementary. Right, these are the basic or these are the base. राइट, क्यों बेस? क्योंकि इनको यूज़ करके हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्म करते हैं. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? दीज आर द क्वांटिटीज दोज कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इनटू स्मॉलर पार्ट्स. आगे उनके छोटे हिस्से नहीं होंगे. राइट, और ये क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनेंगे. इनको यूज़ करके हम दूसरी क्वांटिटी बनाएंगे. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटी. दे आर द बेस. इसके ऊपर सभी क्वांटिटी जो है वो खड़ी होंगी या बनेंगी. राइट, सो इनिशियली जो है मास, लेंथ, टाइम, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी हमने कंसिडर की. बिकॉज लॉज ऑफ मैकेनिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, बट लेटर ऑन इट इज़ फाउंड दैट कि ये सफिशिएंट नहीं है. कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो मास, लेंथ, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है. राइट, सो उसके लिए 4 और क्वांटिटीज़ ऐड की गई. वो है टेम्परेचर, करंट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ये बताऊंगा बाद में आपको उसके बारे में, एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. Right, now we have total 7 fundamental or the basic physical quantities. Okay, so we also measure 2 more supplementary quantities. Those are the angles. Okay, so angle कौन से हमारे पास? Plane angle and the solid angle. I will explain these angles later on in the further topics. Okay, so second type of physical quantity कौन सी है? Derived. Okay, as the name suggests, derived physical quantities are those which are derived from the basic physical quantity by multiplying and or dividing. You can multiply a quantity many times or the different quantities you can multiply, and you can divide the quantities same quantity many times, or you can divide the quantity with the different quantities also. Okay, so those are the derived physical quantity. ओके, सो ये क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जो एग्जिस्ट करती हैं. ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई बना दो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके. राइट, सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द derived फिजिकल क्वांटिटी. स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर. ये मैं इसलिए लिखा क्योंकि आप डेली लाइफ में इनका नाम सुनते हो. ये सभी जो है वो derived फिजिकल क्वांटिटी है. अदरवाइज देयर आर न्यूमरस derived फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सो जस्ट लाइक स्पीड इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम. सो देयर आर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम. ओके, सो लेंथ को टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो स्पीड की वैल्यू बनी है. राइट, नेक्स्ट वी हैव द वॉल्यूम. इट इज़ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड टाइम, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो लेंथ, लेंथ, लेंथ. राइट, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, दिस द मास डिवाइडेड बाय द लेंथ पावर 3, यानी कि मास को 3 बार लेंथ से ड्राइव किया है.
So there are numerous such physical quantities which are derived from the fundamental. Next term is measurement. Measurement is very important in physics because physics is science of measurement. So we have to measure the quantity, right, and we have to express the laws in terms of measurable quantities, and we have to measure those quantities. We have to give the value of those quantities. Okay, so that's why measurement is very important in physics. So before I explain the measurement, so I take an example. मान लो आपने क्या है, आपको चाहिए 5 मीटर क्लोथ, तो यू गो टू द मार्केट एंड यू से द क्लोथ मर्चेंट आई नीड 5 मीटर क्लोथ. व्हाट ही डज, right, he takes a rod, metallic rod, that is we called a meter, and he folds that meter on the cloth you required. Okay, if you need 5 meter cloth, he folds that meter 5 times over the cloth, and then he cut the cloth and give it to you. Okay, now you have got 5 meter cloth, right? So the rod he used to compare that, to fold that is called meter. That is the unit of the quantity, and how much quantity it is, 5 times, right? And you know that is a 5 meter cloth. ये जो process किया merchant ने, this is called measurement. Okay, so we will define the measurement now. The process of comparing a given physical quantity with some already decided fixed amount of quantity. कैसे? क्लोथ लिया, वो फिक्स नहीं है, पर कंपेयर किससे किया? मीटर रॉड से, विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड की इट इज़ 1 मीटर. ओके, उससे कंपेयर किया, फिर बाद में क्या किया, एंड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम इज द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कितना मीटर चाहिए क्लोथ, कितने टाइम चाहिए, दैट ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेजरमेंट. ओके, सो द फिक्स क्वांटिटी विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी और स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी. ओके, नाउ विल डिफाइन द यूनिट और द स्टैंडर्ड, राइट. सो मेजरमेंट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डिफाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्मिटी वर्ल्ड वाइड. ठीक है, ये नहीं है कि हम अपना अपना यूनिट बना ले. सो वी हैव टू डिफाइन द यूनिट, वी हैव टू फिक्स अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी. ओके, सो व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज सम फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, उसी टाइप की होनी चाहिए. अगर लेंथ में ये कर रहे हो तो जो फिक्स करना है वो लेंथ वाली क्वांटिटी होनी चाहिए. ये नहीं लेंथ में ये करने के लिए आप मास उठा लो, ऐसा नहीं. ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमने फिक्स की होती है, राइट. एंड विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट, अब उसको मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट. द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द यूनिट. So just like a unit of the length may be meter, centimeter, kilometer, this is chosen according to the length you are to measure. अगर लेंथ ज़्यादा में ये करनी है तो बड़ा यूनिट ले लेंगे, अगर लेंथ छोटी में ये करनी है तो हम स्मॉलर यूनिट ले लेंगे. सो यूनिट ऑफ मास में बी ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, एक्स्ट्रा. ठीक है, दैट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी यू हैव टू मेजर और यू हैव टू एक्सप्रेस इन द यूनिट. सेम वे देयर इज अ टाइम. ओके, सो टाइम के यूनिट बहुत सारे हैं. If u is the unit of the quantity and n is the number of the quantity, then that quantity will be equal to n into u. Okay, so ये total quantity बन जाएगी. जैसे 5 मीटर, मीटर इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी एंड n इज द 5 मीटर चाहिए था आपको क्लोथ, तो टोटल क्लोथ कितना बन गया? 5 मीटर के बराबर. सो फ्रॉम हेयर n इज इक्वल टू q by u. If you need 5 meter cloth, q is fixed, n is inversely proportional to u. Okay, small is the value of the unit, smaller is the amount of the unit, more will be the number of units in that. Okay, पहले आपने मीटर लिया तो n कितना आएगा? 5. अगर मैं आपको सेंटीमीटर में चाहिए, सो यू विल राइट n इक्वल टू 500. ओके, क्योंकि यूनिट छोटा हो गया तो नंबर ऑफ यूनिट भी बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन द एग्जामिनेशन मैनी टाइम. ओके, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट. एक यूनिट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए. ओके, सो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड. यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि 1 यूनिट जो है वो इतना होता है. अगर 1 मीटर है, 1 किलोग्राम है, तो दिस अमाउंट इज दिस मच ऑफ डेफिनेशन हैज़ दिस अमाउंट. ओके, सो वेल डिफाइन होना चाहिए. इट शुड बी इनवेरिएबल, इट शुड नॉट चेंज, राइट. चेंज कैसे ना हो? प्लेस से, कि इंडिया में कुछ, जापान में कुछ, चाइना में कुछ, अमेरिका में कुछ, ऐसा नहीं. ठीक है ना, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम, इट शुड नॉट चेंज विद द प्लेस, इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशंस. ओके, फिजिकल कंडीशन भी उसको अफेक्ट ना करें.
ठीक है। नेक्स्ट इसमें है अवेलेबल इजीली हो, एक्सेसिबल हो, आसानी से मिल जाए, राइट। प्रॉपर मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, ना कोई ज़्यादा बड़ा ना छोटा हो, ठीक है। अगर हमें क्वांटिटी ज़्यादा मेजर करनी है तो उसके लिए बड़ा यूनिट, अगर हमें छोटी क्वांटिटी मेजर करनी है उसके लिए स्मॉलर यूनिट, राइट। तो अगर आपने आपकी एज एक्सप्रेस करनी है तो यू एक्सप्रेस दैट इज ईयर्स। अगर डे टू डे का वर्क लेना है तो आप उसको आवर्स या मिनट में एक्सप्रेस करते हो क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है, ओके। नेक्स्ट जो है इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ओके। रिप्रोड्यूस मतलब उसको बना सकें हम, ओके। सो यूनिट जो है हर एक जगह में नहीं बनाते हैं, इट इज़ मेड इन वन प्लेस, राइट, एंड इट इज़ रिप्रोड्यूस्ड इन ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इन ऑल द कंट्रीज़, ठीक है। इसको दोबारा बना सकें हम, ठीक है, इसको हम बना सके, फॉर्म कर सके, ऐसा यूनिट होना चाहिए। नॉन पेरिशेबल होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रॉय ना हो कभी भी, ओके। सो डिस्ट्रॉय हो तो उसको दोबारा बना लें, राइट। सो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, ऑब्वियसली जो है दुनिया उसको माननी चाहिए, वर्ल्ड नहीं मानेगा तो यूनिट की कोई यूज़ नहीं रहेगा। सो इट शुड बी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट जो है वो है फंडामेंटल और द बेसिक यूनिट्स। तो फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनके यूनिट जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट है, यानी किस किस के? मास के यूनिट फंडामेंटल है, लेंथ के यूनिट फंडामेंटल है, टाइम के यूनिट फंडामेंटल है, टेम्परेचर के यूनिट फंडामेंटल है। सो दो जो बेसिक क्वांटिटी है उनके जो यूनिट हैं वो है फंडामेंटल, ओके। जैसे मास के ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, लेंथ के क्या हो सकते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, टाइम के क्या हो सकते हैं? सेकेंड, मिनट्स, आवर, ईयर्स, टेम्परेचर के केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, करंट के होते हैं एम्पेयर, ओके। और लुमिनस इंटेंसिटी है कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल, ओके। सो ये यूनिट जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स। एंड द यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं तो दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल स्पीड हमने पढ़ा अभी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये है डिस्टेंस बाय टाइम, सेंटीमीटर अपॉन टाइम दैट इज सेकेंड, या मीटर अपॉन सेकेंड, ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। सो दोनों यूनिट किसके हैं? ड्राइव स्पीड के हैं, विच इज़ द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। इन दिस वे वी हैव द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई हैव रिटन सम रॉन्ग हियर, इट इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ सेकेंड। सो यहाँ 2 नहीं डालना है, यहाँ 1 डालना है। सो बाय मिस्टेक आई रोट 2 ओवर हेयर, बट इट इज़ मीटर पर सेकेंड, हेयर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। सो टेक इट seriously. So I have written wrong over here, okay, so you don't do the mistake, okay. Next जो है हमारे पास system of the units, right. There are different set of the fundamental units and derived units which in which we can express the units of the physical quantities, right. There are different set of the system of units, right. उसमें से सबसे जो important है 3-4 वो हमने एक्सप्रेस किए हैं। पहले CGS system, here C stand for centimeter, G for gram and S for second. So it is a system in which length is measured in centimeter, time, mass in gram and time in second, okay. So second system जो है वो FPS system है, foot, pound and second system, right. So in this system the length is measured in foot, right, and the mass is measured in pound and time is measured in second, ओके। सो यहाँ लिखा हुआ फुट पाउंड जो है इट इज़ रिटन विद एल बी जो नाम दिया हमने लेटिन वर्ड से लिब्रा, ठीक है ना, लिब्रा से लिया, दैट इज़ फ्रॉम द बैलेंस, ओके। सो पाउंड जो है एल लिखते हैं, राइट। सो यहाँ हमारे पास है 1 फीट जो है इट इज़ नियरली 0.3048 मीटर के बराबर है या 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 पाउंड दैट इज इक्वल टू 1 LB। सो LB क्या था? लिब्रा, वहाँ से बनाया हुआ है, दैट इज 0.453592 और यू कैन राइट 0.46 आप ले सकते हो इसमें, या 453.6 जो है वो ग्राम के बराबर हो जाता है 1 पाउंड, ओके। नेक्स्ट सिस्टम जो है दैट इज MK सिस्टम। हियर M स्टैंड फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S जो है वो सेकेंड है, राइट। इट इज़ अ सिस्टम इन विच मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, okay. So next is the most important system of units that is called SI system, that it is international system of units, right. So SI international system है, IS नहीं लिखा हमने, SI लिखा because it is its French name is System International D Units, okay. So इसलिए करके जो उसको लिखते हैं SI system, right. तो वैसे बोलने में इंटरनेशनल सिस्टम ही आता है, पर we write SI, its name is derived from the French, okay. सो पहले मैंने जो आपको बताया कि फंडामेंटल यूनिट 3 थे, तो ऑल अबव जो ये जो क्वांटिटीज़ हैं यूनिट्स हैं, यहाँ सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट की ही क्वांटिटी के ही यूनिट है,
right? But do you know that there are 7 basic physical quantity? We need the units of all the basic physical quantity. So new system is formed, that is called the International System of Units. It contains the units of all the physical quantities, that is the all 7 and all the derived. ओके सो इसमें क्या है, लेंथ के यूनिट मीटर में है, मास के किलोग्राम में है, टाइम के सेकंड में है, जो एम के सिस्टम है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म ही है ये, राइट? टेम्परेचर केल्विन में है, और करंट के एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. So these are the 7 fundamental quantity and their units in SI system. ओके तो सिंबल भी यही लिखने हैं जहाँ. ओके सिंबल चेंज नहीं करने हैं, ध्यान से देख लो. सिंबल स्मॉल मीटर एम से मीटर, किलोग्राम स्मॉल के जी, इट इज़ नॉट कैपिटल के जी. सेकेंड है तो स्मॉल एस लिखेंगे, कैल्विन है तो कैपिटल के लिखेंगे. ओके तो ये जो है यूनिट्स के जो सिंबल हैं ये इसको ध्यान रखना. ये नहीं कि अपनी तरफ से आप कैपिटल लिख दो, अपनी तरफ से स्मॉल लेटर लिख दो. सो एसआई सिस्टम में हमारे पास सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी उसके भी यूनिट है, रेडियन है, स्टीरेडियन, राइट? प्लेन एंगल के हैं, सॉलिड एंगल के. सो आपको कहा था मैंने ये इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा. सो आई हैव एक्सप्लेन द एंड ऑफ दिस लेक्चर. Okay, so friend, next we have the definition of the fundamental unit of the SI system. जो SI system में units है उनकी हमने definition लेनी है, right? So scientists have done a lot of effort to define the units. So time to time there are the different scientists had made the different definition of the units, that is किलोग्राम, मीटर, एंड वी हैव डिफाइंड इन डिफरेंट वे. सो देखते हैं कौन कौन से यूनिट डिफाइन किए गए, कैसे कैसे, और कौन कौन से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से हमने डिस्कार्ड कर दिए. ओके सो सबसे पहले है यूनिट ऑफ मास, दैट इज़ 1 किलोग्राम. नाउ हाउ मच इज़ 1 किलोग्राम? ओके सो 1 किलोग्राम जो है इट इज़ द मास ऑफ प्लाटिनम एंड इरिडियम सिलेंडर. एक प्लाटिनम इरिडियम सिलेंडर है जिसकी हाइट एंड डायमीटर सेम है, दैट इज़ 3.9 सेंटीमीटर के बराबर है, जिसमें 90% प्लाटिनम है और 10% इरिडियम है. ओके तो उस सिलेंडर का जो मास है दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, एंड दैट सिलेंडर इज प्लेस्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इन सब नियर पेरिस. ठीक है ना, पेरिस इन फ्रांस. ओके सो फ्रांस में है ये एक म्यूजियम, राइट, और द साइंटिफिक सेंटर जहाँ हमने इसको जो है वो प्लेस किया हुआ है, एंड उसका जो सिलेंडर का मास है वो 1 किलोग्राम के बराबर है. नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द मीटर. सो देर आर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द मीटर. सो दो बाद में जो एक्यूरेट है वो आपको बताता हूँ मैं, जो अभी लेके चलते हैं, पर वी विल डिफाइन द अर्ली यूनिट्स आल्सो, द ओल्ड यूनिट्स. सो इन 1791, okay, so the meter is defined in terms of the diameter of the earth. Okay, so these are distance between the some places on the earth. So 1 meter is the is equal to the 1/10 million of a distance between equator and the north pole along the meridian line through the Paris. पेरिस के थ्रू जो मेरिडियन लाइंस के थ्रू इक्वेटर पोल में जाएगी, नॉर्थ पोल में, तो जो उसकी लंबाई होती है उसको हमने 1/10 मिलियन से डिवाइड किया है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर है. दोस्तों दिस यूनिट केम इन 1791. ठीक है, फिर बाद में चेंज किया उसको यूनिट्स को, राइट. सो इन 1889 तो यूनिट को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड. ठीक है, सो प्लैटिनम और इरिडियम की जो रॉड बनाई, ओके, तो उसके ऊपर 2 गोल्ड रिंग है उसके एंड के ऊपर, राइट. उनमें जो डिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस में, दैट इज़ कॉल्ड द 1 मीटर. ठीक है, वो 1 मीटर है, और पड़ी कहाँ है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन फ्रांस. ओके सो नेक्स्ट वी हैव द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ. तो ये दोनों यूनिट जो है वो डिस्कार्ड कर दिए गए, बिकॉज ये सभी जो है वो फिक्स नहीं रहते हैं, वेरिएबल हैं, राइट. तो इसलिए करके जो है दे डू नॉट सेटिफाई द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट्स, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, एंड एटॉमिक स्टैंडर्ड को चूज़ किया गया फिर बाद में. ठीक है, इन सो एटॉमिक स्टैंडर्ड लेंथ का क्या है? सो इसमें देयर इज़ अ वेरियस डीप कंसेप्ट. तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा इसको. ठीक है, अगर अंडरस्टैंड हो गया आपको तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सो इट इज़ वेरी डीप कंसेप्ट. तो जो आप जो हायर क्लास में जाके पढ़ोगे तो तभी पता लगेगा. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हेयर आल्सो. तो 1 मीटर इज इक्वल टू द दिस नंबर टाइम. ओके राइट, so this number is 16,50,703.73 times the wavelength of the red orange light emitted by the krypton 86 during the transition of the electron from 5d5 to 2p10. ठीक है, और बिटवीन 2 पर्टिकुलर लेवल्स. अगर लेवल नहीं आ रहता है तो आप लिख सकते हो ट्रांजिशन बिटवीन 2 पर्टिकुलर लेवल लिख सकते हो उसके बाद.
ठीक है। सो दो ये क्या कंसेप्ट है, तो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ लोअर क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, अभी +1 में शुरू हो गया होगा, राइट। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहाँ उनकी स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाएंगे उनकी एनर्जी जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, ऊपर से नीचे आएगा, राइट। तो जितना एनर्जी डिफरेंस रहता है उसका दोनों लेवल के बीच में, तो वो रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास जो है कंसेप्ट है रेडिएशन आने का फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट और एनी अदर सोर्स जहाँ से भी रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। ओके, तो ये जो लेवल है ना ये सब लेवल होते हैं, तो आप इसको पढ़ोगे बाद में ऑर्बिटल का कंसेप्ट, ओके। सो एवरी जो के एल एम एन जो शेल पढ़े हुए हैं आपने, दे आर नॉट सिंगल, राइट। तो उसमें भी आगे सब लेवल्स हैं, उनके नाम है डी एन पी, जैसे यहाँ ये लिखे हुए हैं, राइट। सो यू स्टडी इन +1 एंड +2, ओके, इन केमिस्ट्री, तो डिटेल में स्टडी कर लोगे। सो जब ये ट्रांजिशन होगी यहाँ से यहाँ, तो जो रेड ऑरेंज लाइट एमिट करेगा क्रिप्टॉन, उसकी वेवलेंथ को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। सो देयर इज वन मोर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय दिस नंबर, दैट इज 1 बाय 299,172, यू कैन से इट इज 299,792,458th part of the second in the vacuum. So 1 meter जो है, I thought I had done something wrong over there, it is right. So 1 meter is equal to the distance traveled by light in this time, सेकंड के इस हिस्से में, ठीक है। 1 सेकंड को हम इससे डिवाइड कर दें इस नंबर से, राइट। 299,792,458 पार्ट्स ऑफ द सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल लाइट करेगी, दैट इज कॉल्ड द 1 मीटर, ओके। सो नेक्स्ट जो ये जो यूनिट है हमारे पास, तो दीज आर इट इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द एटॉमिक स्टैंडर्ड। सो ये हम प्रेफर करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मीटर को डिफाइन करने के लिए हम प्रेफर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ, ओके। सो एक यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की है, डिफाइनिंग 1 मीटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। So here is the speed of light, I cannot change it right now, right. So you hear it, it is not sound, it is light. So 1 meter, defining 1 meter in terms of speed of light is more accurate than the defining the in terms of the atomic standard, okay. Now the advantage of atomic standard of the length, why you define the atomic standard of the length, okay. So इसमें simple पहली लाइन तो ये लिख सकते हो आप, because it satisfy all the characteristics of the unit, ओके। सो पहले इट इज़ वेल डिफाइंड है ये, ओके। वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि वो पर्टिकुलर लाइट जो है वो क्रिप्टॉन एटम ही एमिट करेगा जब ड्यूरिंग वो ट्रांजिशन ही होगी, जो ऊपर से ट्रांजिशन लिखी है, कौन सी वाली, तो 5D5 एंड 2P10 वाली ट्रांजिशन जब होगी तभी वो लाइट आनी है, और तो उससे इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर बन जाएगा, और दूसरा कोई एटम वो लाइट एमिट नहीं करेगा ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ओके। सो इट इज़ वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है डजंट चेंज विद द टाइम। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, राइट। तो ये चेंज नहीं होती है फिजिकल कंडीशन टाइम प्लेस से, ओके। सो इजीली रिप्रोड्यूसेबल है, क्रिप्टॉन एटम है, हम एनट्रैप करके तो लैब में हम यहाँ इसको नोट कर सकते हैं डिस्टेंस। सो नॉन पेरिशेबल हैं, ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो एटमॉस्फेयर है तो हम हैं, तो ये एटम है, ओके। सो ऑर्डर ऑफ द एक्यूरेसी इज़ वेरी हाई, 1 × 10⁹, तो मैंने कहा कि एक्यूरेट है बहुत ज़्यादा, राइट। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है ये, ओके। सो नेक्स्ट विल डिफाइन द 1 सेकेंड। इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, राइट। सो पहले है ओल्ड डेफिनेशन। सो 1 सेकेंड और 1 सोलर सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 86,400 फ्रैक्शन ऑफ द मीन सोलर डे। जो मीन सोलर डे होता है उसको हम इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जो भी टाइम इंटरवल आएगा दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपको कि मीन सोलर डे क्या होता है, सोलर डे होता है इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन 2 कंसेक्टिव नून।
जब हमारे बिल्कुल सन जो है वो बिल्कुल हाइट में आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा, राइट, आज आया और कल फिर आएगा, राइट, जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड द सोलर डे। ओके, सो वी टेक द मीन ऑफ द सोलर डे ऑफ द फुल ईयर, पूरे साल के हम सोलर डे लेंथ लेते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द मीन सोलर डे, उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द सोलर डे एंड द 1 सेकेंड। एंड ये फिक्स नहीं होता, इट इज़ वेरिएबल, इट चेंजेस विद द टाइम, थोड़ा टाइम लगता है बट इट चेंजेस आल्सो, इसलिए कि ये यूनिट जो है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई नहीं करता है यूनिट के, सो दिस यूनिट इज डिस्कार्डेड। यहाँ कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू कंसेक्टिव पासेज ऑफ द सन थ्रू द मेरिडियन इज कॉल्ड द सोलर डे, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट में जो निकलेगा। द एवरेज ऑफ ऑल सोलर डेज आर कॉल्ड द मीन सोलर डे। द टाइम ड्यूरेशन, सेकंड डेफिनेशन है, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव पासेज ऑफ द अर्थ थ्रू द वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब सन जो है, राइट, वो इक्वेटर जो ईस्ट से निकल के, रियल ईस्ट से निकल के तो रियल वेस्ट में जाएगा, अगर वो टेढ़े मेढ़े जाता है, यू माइट हैव सीन दैट कि सन की पोजीशन आपके अर्थ के अकॉर्डिंगली जो है चेंज होती है, ठीक है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल इन माय हाउस इन विंटर्स जो है सन गोज इन द डायरेक्शन फ्रॉम माय बैक साइड ऑफ द हाउस, इन समर इट गोज फ्रॉम द फ्रंट साइड। ओके, सो आप भी ऑब्जर्व करना, तो ये सन इस तरह से जाता है, राइट। सो पर एक टाइम जब आएगा बिल्कुल आपके हेड से ऊपर से होके जाएगा, दैट इज कॉल्ड द वर्नल इक्विनॉक्स। ओके, सो ये जो सन जो है वो अर्थ जो है वो वॉबल करती है, साथ में दो तरह की उसकी मोशन रहता है, एक रोटेशन है अबाउट एक्सिस और साथ में वॉबल करती है। ये मैंने छोटी सी फिगर बनाई है, ये है फिगर ऑफ टॉप, लट्टू देखा हुआ है आपने, राइट, तो लट्टू बिल्कुल सीधा नहीं घूमता, राइट, इट मूव साइडवेज आल्सो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेशन, राइट। तो अर्थ जो है वो रोटेशन भी है और प्रोसेशन भी है, साथ में ऐसे चलती रहती है, टेढ़ी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है ना। सो इसको जो है ये जो फिनोमेना है, ये जो साइंटिस्ट, जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने बाद में ऑब्जर्व किया है, पर इंडियन बुक्स में जो है, जो हमारी हॉली बुक्स हैं, उसमें ऑलरेडी इसको मेंशन किया हुआ है, तो हम इसको लिखते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, राइट। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, धार्मिक बुक्स पढ़ते हो, तो उसमें अर्थ के बारे में लिखा है उत्तरायण दक्षिणायन, राइट। सो ये अगर हम 5000 बैक में चल जाएं कृष्णा के टाइम में भी, तब भी वहाँ इसका जिक्र है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है मॉडर्न में हम पढ़ रहे हैं अभी टाइम में 500-600 ईयर्स बैक से, ठीक है। अदरवाइज़ ये हमें ऑलरेडी जो है हिंदू बुक्स में जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। ओके, सो चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं यहाँ, अब हम डेफिनेशन आ जाते हैं 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। सो 1 सेकेंड जो है एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ले लेते हैं। 1 सेकेंड तो कैसे डिफाइन किया हमने, राइट। 1 सेकेंड इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ दिस नंबर, राइट। सो ये नंबर कितना बन जाएगा मेरे पास, 9,192,631,770 वाइब्रेशंस corresponding to the transition between two hyperfine level of the cesium-133 atom in ground state। तो आप कहोगे ये पता नहीं सर क्या बोल गए, ठीक है ना, तो ये तो पता ही नहीं लगा, राइट। सो व्हाट हैपन्स कि एटम कोई भी है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिट में घूमता नहीं रहता, वो भागता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। सो इतना आसानी से इतना बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज़ है इसमें, राइट। सो जो हम सीजियम को हमने एक्साइट किया था लेज़र से ऑफ सम फ्रिक्वेंसी, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली जो वाइब्रेशन होती है, राइट, इलेक्ट्रॉन की बिटवीन द टू लेवल्स, राइट, उसका टाइम लेके तो उसको मल्टीप्लाई किया है नंबर से, पर आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हाइपरफाइन लेवल, एक फाइन स्ट्रक्चर होता है, हाइपरफाइन लेवल होता है, तो इसमें क्या है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, राइट, तो वो उनके ऑर्बिट जो है वो सिंगल नहीं होते हैं, वो जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, दैट गेट डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू देयर ओन इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, तो उनकी जो ऑर्बिट के जो पाथ होते हैं, वो लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल, वो थोड़े जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर लेके चलते हैं एटम का। तो ये एक डीप कंसेप्ट है, आप इसको जो है हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी इतना पॉसिबल नहीं है मुझे एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो और ये टॉपिक मैंने पढ़ाना भी नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं मैं इसमें दूंगा, क्योंकि इट इज़ मोर और लेस अ पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, सो आपको ऐसे ही डेफिनेशन याद रखनी है,
राइट। सो यहाँ वाइब्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो लेवल्स में भागेगा हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में, राइट। तो सीजियम 133 में ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब सभी इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जो स्टेबल पोजीशंस हैं वहाँ बैठे होंगे वो, ठीक है। तो उसको वाइब्रेशंस के ड्यूरेशन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 1 सेकंड बनेगा। देयर इज अनदर डेफिनेशन, 1 सेकंड इज अ टाइम इंटरवल इक्वल टू दिस नंबर टाइम जो पहले लिखा हुआ है 9,192,631,770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ द सीजियम इन ग्राउंड स्टेट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज ऑफ द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम। सो ये मैंने लेवल बनाए हुए, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे यहाँ लेवल में, यहाँ एनर्जी है यहाँ एनर्जी है, पर ये लेवल सिंगल नहीं होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। ओके, सो एक लेवल में नहीं घूमते, दे आर डिफरेंट लेवल्स, जिसको हम कहते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ द एडवांटेज ऑफ द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम। टाइम का एटॉमिक स्टैंडर्ड क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो क्यों करते हैं, बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट्स। जो पहले मैंने लेंथ के बारे में बताया था उसी तरह से इसके जो प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। और सीजियम क्लॉक इज़ वेरी हाईली एक्यूरेट, राइट। सो 1 10⁻11 सेकेंड, यानी कि 1 इन 10⁻11 सेकेंड, मतलब अगर आप 10⁻11 सेकेंड को मेजर करोगे तो 1 सेकेंड का उसमें एरर आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है केल्विन। 1 केल्विन, हाउ मच इज़ 1 केल्विन। केल्विन जो है इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। हेयर अगेन कुछ टेक्निकल डेफिनेशन आ जाएगी जो आपने पहले नहीं सुनी हुई है, पर ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है। तो 1 केल्विन डिफाइन करने के लिए यूज़ किया गया एक कंसेप्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप तीनों स्टेट में देखते हो लाइफ में, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, आइस, वाटर, स्टीम, ठीक है ना, या वेपर में। ओके, सो बट देर इज़ दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर है जहाँ वाटर जो है इट को एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ इट्स 3 स्टेट, तीनों स्टेट में इकट्ठे ही होता है। उस जगह में, उस टेम्परेचर प्रेशर में ये सॉलिड भी होगा और ये लिक्विड भी होगा, आइस भी होगी और लिक्विड भी होगा और वेपर फॉर्म में भी होगा, ठीक है ना। सो इक्विलिब्रियम तीनों में जो है स्टेबलिश हो जाता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। और जो टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ओके, विच इज इक्वल टू 0.16 डिग्री सेल्सियस। तो 1 केल्विन कैसे डिफाइन किया, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.6 फ्रैक्शन ऑफ द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर द वाटर। ये जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है पानी का, उसको डिवाइड करेंगे हम 273.16 से, जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 केल्विन। सो इन दिस वे 1 केल्विन इज डिफाइंड, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है 1 एम्पेयर, जो एम्पेयर जो है इट यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए भी जो है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट यूज़ किया है जो अभी नहीं स्टडी करोगे आप क्यों, ठीक है। सो यहाँ डेफिनेशन ऐसी ही हैं, सभी कंसेप्ट बहुत हाई लिए हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत एफर्ट किए हैं डेफिनेशन बनाने के लिए, राइट। सो इसमें एक कंसेप्ट ऐसा है एम्पेयर में कि मान लो ये 2 पैरेलल वायर हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है ना तो ये वायर आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, ओके, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में दे रिपेल ईच अदर। सो ये जो प्रॉपर्टी लेके, जो ये फिनोमेना को यूज़ करके 1 एम्पेयर को डिफाइन किया गया है, राइट। 1 एम्पेयर क्या है, 1 एम्पेयर इज द दैट वैल्यू ऑफ द करंट, वो करंट है विच व्हेन पास थ्रू द 2 पैरेलल वायर्स, 2 पैरेलल वायर में से पास करें जिसको 1 मीटर दूर रखा हुआ है इन एयर और वैक्यूम, और आपस में जो फोर्स लग रही है वायर में वो है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, इतनी फोर्स लग रही है, ठीक है। उस वक्त जो करंट पास कर रहा है इन दोनों वायर में से दैट इज कॉल्ड 1 एम्पेयर। So 1 ampere is that value of the current which when passed through the 2 infinitely long parallel wires when placed 1 meter apart in air or vacuum attract or repel each other with the force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter. Okay, so this is the definition of 1 ampere. Okay, आपको याद रखना पड़ेगा, जैसी भी definition है you have to learn it. Now 1 candela. So candela is the unit of the luminous intensity. Luminous मतलब light, glowing body, जो light emit करती है that is called the luminous body. It is light energy. ठीक है। सो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी रेडिएटेड और एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया सरफेस का है कितनी एनर्जी दे रहा है या ले रहा है 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ओके। सो कैंडला जो है वो लाइट इंटेंसिटी जो है लुमिनस इंटेंसिटी उसके यूनिट हैं, ओके। वो कैसे डिफाइन किए, द 1 कैंडला ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी इज द luminous intensity in a given direction by
ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का होता है एक कलर, मोनो माने सिंगल, क्रोमेटिक माने कलर, तो मोनोक्रोमेटिक जो है वो सिंगल कलर, हम कहते हैं इसको सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशन, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ द सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, ठीक है, एंड हैज रेडिएंट इंटेंसिटी, रेडिएंट इंटेंसिटी भी सेम ही है वही, लुमिनस इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टीरेडियन, ठीक है। स्टीरेडियन इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सो आपको डेफिनेशन बच्चे ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी आपको, ओके। सो कंसेप्ट छोटे मोटे इसके अंदर है, अभी पॉसिबल नहीं है सारा कुछ बताना, ओके। सो डेफिनेशन है एज सच आपको याद रखनी है, ओके। सो बस इतना याद रखना, कैंडला जो है यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी के, राइट। सो उसने कितनी कौन सी फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट करनी, ये वाली, राइट। कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, 1/683 वाट पर स्टीरेडियन, ठीक है, 683 वाट 1/। नेक्स्ट इज 1 मोल, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। मोल आपने सुन लिया, वो नाम सुना हुआ आपने। सो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कितना होता है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो कितना होता है, जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप रहता है, 12 ग्राम में जितने एटम होंगे कार्बन के, उतने ही एटम अगर किसी और सब्सटेंस के लेंगे, राइट, या मॉलिक्यूल ले लेंगे किसी टाइप सब्सटेंस के, तो वो उसका मोल बन जाएगा। सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which contain same number of the atoms or molecules as there are atoms in 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। सो जितने 12 ग्राम कार्बन में आइसोटोप होंगे, जितने कार्बन एटम होंगे, उतने ही किसी के हम एटम या मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो उसका मोल होगा, राइट। तो 1 मोल में इतने एटम होते हैं, उसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। अगर हम किसी भी सब्सटेंस के इतने एटम या मॉलिक्यूल लेंगे तो वो उसका 1 मोल होगा, ठीक है ना, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इतने एटम जो है वाटर के ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द 1 मोल ऑफ द वाटर, ओके। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है मोल की, एंड इट फिनिशेज द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट्स, ओके, डेफिनेशन ऑफ द एसआई यूनिट। अब हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। तो देर आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दो है, ये हमारे पास क्वांटिटी है प्लेन एंगल, जो अभी तक एंगल स्टडी करते आए हो वो प्लेन एंगल है, राइट। ये क्या है, ये आर्क है और ये पॉइंट है प्लेन में, तो जो आर एंगल सबटेंड करेगी प्लेन में, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द प्लेन एंगल, ठीक है। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट इन प्लेन, ओके। सो मैथमेटिकली जो है इस एंगल को लिखते हैं हम आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। और थीटा विल बी इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। अगर एल और आर बराबर हो जाते हैं तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। सो एसआई यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल इज रेडियन। 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने एक आर्क ले ली है, उसकी लंबाई रेडियस के बराबर है, सेंटर में जितना एंगल बनाएगी वो आर्क, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये है कन्वर्शन है कुछ डिग्रीज में और हमारे पास रेडियन में। सो π/2 रेडियन होता है 90 डिग्री के बराबर, यहीं से हमने डिफाइन किया इसको। तो 1 रेडियन बन जाएगा 180/π डिग्री, या 1 डिग्री बन जाएगा π/180 रेडियन। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्रीज। जैसे 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 30, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, π/180 रेडियन, तो यहाँ लिख देंगे π/6 रेडियन बन जाएगा। अगर हमारे पास π/3 रेडियन है तो π/3 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π, ये बन जाएगा 60 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल जो है इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस, एरिया सबटेंड करेगा एट ए पॉइंट इन स्पेस। 3 डायमेंशन एंगल होता है, ये एरिया है और ये पॉइंट है, सभी एरिया के कोने मिला देंगे, हमारे पास एक कोन बन जाएगा कितना से, कोन के वर्टेक्स में जो गोल एंगल बनेगा सर्कुलर फॉर्म में, इट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल, ओके। सॉलिड एंगल क्या है, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट इन स्पेस और इन 3 डायमेंशन, ठीक है। सो मैथमेटिकली ये जो सॉलिड एंगल रहता है ये होता है एरिया डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है, a/r²। अगर a जो है वो r के बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा फिर r²/r², 1 स्टीरेडियन, इसके ऐसा यूनिट होते हैं स्टीरेडियन, ओके। तो 1 स्टीरेडियन कितना होगा, 1 स्टीरेडियन इज द एंगल सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ओके। सो हमारे पास जो एक स्फीयर है तो उसका जो एरिया सपोज किया स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर, जितना वो सरफेस जो है वो एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ द स्फीयर में, दैट विल बी इक्वल टू 1 स्टीरेडियन, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारे पास ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एडवांटेजेस ऑफ द SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो इट इज़ SI नॉट SY. सो यू सी इट इज़ SI. तो SI कर लेना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ अब SI लिखना, तो you write it SI. Advantages of the SI system of the units. So first it is the coherent system of units. coherent का मतलब होता है कि इसमें सभी यूनिट्स की सभी क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, फंडामेंटल के भी और ड्राइव के भी. ओके, सभी के यूनिट्स हम इससे फॉर्म कर सकते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कोहेरेंट सिस्टम. समटाइम कम्स इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि तो इट गिव्स वन यूनिट टू द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वर्क हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क हैं. कैसे? वह हमारे पास जो है ग्रेविटेशन वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, राइट, हीट है, हमारे पास एनर्जी है, राइट. इन सभी के यूनिट सेम होंगे. वॉट एवर द सोर्स ऑफ हीट और एनर्जी और द वर्क डन, the all unit all the quantities will have the same unit, all the works and all the energies will have the same unit, that is joule. ठीक है, एनर्जी कोई भी हो, राइट, यूनिट जो है उसके जूल ही होंगे. बेशक वो हीट एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, कुछ भी हो. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास मीट्रिक सिस्टम. तो इसके जो बड़े और छोटे वैल्यूज़ हैं उनको 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द 10. बड़े और छोटे, मल्टीपल, सब मल्टीपल. क्लोज रिलेटेड टू CGS सिस्टम. मोस्ट ऑफ द यूनिट जो है CGM सिस्टम के साथ 10 के पावर के साथ 10 की पावर के साथ रिलेटेड रहते हैं. सो दिस इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द SI एंड CGS सिस्टम. तो वेल डिफाइंड यूनिट्स हैं एंड इनवेरिएंट हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द SI यूनिट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है. अगेन आई एम सेइंग इट इज़ SI नॉट SY. सो एडवांटेज ऑफ द SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ये इसके एडवांटेज हैं. तो कोहेरेंट एंड रिलेशनल सिस्टम जो होता है इसको अंडरस्टैंड कर लेना. कोहेरेंट मतलब सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं इसमें, फंडामेंटल एज वेल एज ड्राइव. रिलेशनल मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है तो उसके यूनिट सेम ही होंगे, मतलब कि सभी फोर्सेस के यूनिट न्यूटन ही होंगे, राइट. बेशक वो मैकेनिकल फोर्स हो, राइट, बेशक वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, बेशक वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, बेशक वो मैग्नेटिक फोर्स हो, राइट. सो यूनिट सभी के न्यूटन ही होंगे. इन द सेम वे ऑल टाइप ऑफ एनर्जी विल पोजेस सेम यूनिट, दैट इज जूल, एंड वर्क के भी सभी के जूल होंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो रिमेनिंग जो है टेक्निक ऑफ मेजरिंग द लेंथ, मास एंड टाइम, सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज शेयर.